آج ویو 360 میں FBR کی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش، رد عمل میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، پاکستانی حکومت کے لیے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات ایک چیلنج کیوں ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کی بحث کا ایک یقینی جزو ملک میں کئی طبقوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ یا ان کا کم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس میں اکثر پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھانے سے متعلق مختلف تجاویز ہوتی ہیں۔ IMF کی ٹیکنیکل اسسٹنس رپورٹ میں بھی مختلف شعبوں میں ٹیکس بڑھانے اور ایسے شعبے جو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے اور سبسڈی ختم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ اس میں درمیانے اور چھوٹے کاروبار بھی شامل ہیں، جس میں مینوفیکچررز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کی سفارش کی گئی۔ لیکن حکومت جب بھی تنخواہ دار طبقے کے علاوہ کسی پر ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا رہتا ہے۔ کل کی تاجروں کی ہڑتال بھی اسی چیلنج کی ایک مثال ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لانا اور ان پر کامیابی سے عمل درآمد ممکن کیوں نہیں ہو پاتا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سال جون میں ختم ہونے والے مالی سال کی ٹیکس وصولیوں پر نظر ڈالیں تو گزشتہ مالی سال میں حکومت کے مطابق اس کی ٹیکس ٹو GDP ریشو یا مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح 9% رہی، جو کہ اس سے ایک سال پہلے کے 8.5% کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے۔ پاکستان کے ٹیکس جمع کرنے والے وفاقی ادارے FBR کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,252 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں FBR نے ہدف سے 54 ارب روپے زیادہ یعنی 9,306 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا۔ مالی سال 2024 میں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس کی مد میں تقریباً 368 ارب روپے ادا کیے، جبکہ ملک کے سب سے بڑے برآمدی شعبے ٹیکسٹائل کا ملکی محصولات میں حصہ صرف 111 ارب روپے تھا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے پچھلے مالی سال میں 16 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھیں۔ حالیہ ٹیکسز کے نفاذ کے بعد جو احتجاج ہمیں تاجروں کی طرف سے دیکھنے میں آیا، ان کے مطالبات کیا تھے؟ وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، ہر بندے کو دینا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ 36 سے زیادہ قسم کے بالواسطہ ٹیکسز ادا کرتے ہیں تو ٹیکس ٹیم میں لوگوں کو آنا چاہیے۔ تاجر کو ٹیکس دے گا تو یہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اشرافیہ کو اپنے اللہ تلے بند کرنے چاہیے۔ اس وقت لوگ پسے ہوئے ہیں اور مہنگائی سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم بھی تاجر ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی ان چیزوں کا شکار ہیں۔ ہمارا دل نہیں کرتا، ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے، آگے بڑھے، لیکن اگر ہم غریب کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی اور وہ کھانا نہیں کھائے گا، ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لوگ پورے مہینے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم راشن یا راشن والے کو پیسے دینے ہیں، لیکن اس سے پہلے بجلی کا بل آ جاتا ہے اور وہ اتنا ناجائز بل آتا ہے کہ وہ بھرنے کے بعد پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ دن بدن ہمارے کاروبار بالکل کلوز ہوتے جا رہے ہیں اور دن میں 2 یا 3 گاہک آتے ہیں، اور جس سے ہمارا بجلی کا بل تک کے اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ تاجروں کے احتجاج پر عام عوام کیا کہتے ہیں؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ تاجروں پہ ٹیکس لگتا ہے تو تاجر ہڑتال کرتے ہیں، اس کا اثر ہم غریب لوگوں پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو تاجروں کو ٹیکس دینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس سرمایہ بہت ہوتا ہے، ان کو اپنے سرمایہ کا ٹیکس دینا چاہیے۔ ٹیکس تو ضروری ہے بھائی جان، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ٹیکس پے ہوگا تو غریب عوام کو ریلیف ملے گا نا۔ تو یہ جو بڑے تاجر ہیں جو اگر ٹیکس نہیں پے کریں گے تو غریب تو اور مرتا جائے گا۔ تو میرے خیال سے تو ٹیکس لگنا چاہیے، ضروری ہے۔ تاجر پہ نہیں، کوئی بھی دکاندار ہے، کوئی بھی ٹھیلے والا بھی ہے، ٹیکس لاگو ہے۔ ہم سیلری پرسن ہے، سیلری سال بعد انکریز ہوتی ہے، وہ بھی 10%، 15%، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹیکسز ہیں وہ آئے روز بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں ٹیکس نہیں بڑھ رہا، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں ٹیکسز ہے، آپ کے گھروں پہ ٹیکسز ہیں، پراپرٹی پہ ٹیکس ہے، پیٹرول پہ ٹیکس ہے، بجلی پہ ٹیکس ہے، مطلب کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہوئی پڑی ہے۔
एक सैलरी पर्सन है जिसकी सैलरी साल बाद इंक्रीज होनी है, वो कहाँ से अखराजात अपने पूरे करेगा? सबको देना चाहिए, ताजरों को भी देना चाहिए और आम है उनको भी देना चाहिए। हमारे टैक्स से ही हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा। नजायज़ टैक्स है सर, नजायज़ है ये, हुकूमत बिल्कुल नजायज़ टैक्स लगा रही है, बिजली के बिलों पे भी लगा रही है, वैसे लगा रही है। हम तो हर चीज़ खरीदते हैं उसमें टैक्स है, तो अब कौन सा टैक्स लगाना है हुकूमत ने? ये बिल्कुल नाकाम है, गलत है, ये नजायज़ लगा रही है हुकूमत टैक्स। आसिम अली राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ताजरों और हुकूमत के दरमियान किसी तरह की बातचीत हो रही है और हुकूमत अपने इस्लाहात प्रोग्राम को नाफिज करने में कितनी पुरअज़्म है। आसिम, क्या कहा जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से कि ताजरों से मुज़ाकरात होंगे अब? जी बिल्कुल असद, जिस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से जो कहा गया, FBR की तरफ से कहा गया कि वो ताजरों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको जो ताजर दोस्ती जिसमें उनको शामिल किया जा रहा है, जिसमें 35 लाख का जो है हदफ मुकर्रर किया गया है कि 35 लाख ताजर जो हैं वो यहाँ पर उसका हिस्सा बने। अब तक जो वहाँ पर FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 लाख जो ताजर हैं वो यहाँ पर इस टैक्स के निजाम का हिस्सा हैं, जबकि 32 लाख अफराद अभी रहते हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है इस ताजर दोस्त स्कीम के जरिए। लेकिन जो ताजरों की तरफ से लगातार एहतजाज किया जा रहा है, उसकी वजह से हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज जो होने वाली हड़ताल है उसके बाद भी FBR का मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के साथ राब्ता हुआ और उनके साथ उनको मुख्तलिफ पेशकश की गई, जिसमें यह भी कहा गया कि छोटे ताजरों को जो है वो इस टैक्स के जो है वो इसे एग्जम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े ताजर हैं, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के मालिक हैं या मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के मालिक हैं, उनको किसी सूरत इससे एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा। जबकि ताजर जो बेशतर ताजर हैं वो इस बात पर कन्विंस है, वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ताजरों को किसी भी तरह से जो है वहां पर इस निजाम से बाहर रखा जाए। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अरबों रुपए के हिसाब से मुख्तलिफ लोगों के बिजनेसेस हैं, लेकिन वो वहां पर नॉन फाइलर होने के बावजूद वो वहां पर उस ज्यादा वो मुख्तलिफ चीजों के लिए टैक्स है वो अदा कर देते हैं, लेकिन वो बाकायदा अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करवाने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार उसी में है। हुकूमत का फोकस है कि हर हाल में इनको टैक्स सेट में लेकर आया जाए। 25 लाख ताजर हैं जिनके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, ताजिर तंजीमों के साथ राब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वहां पर इनके साथ कोई भी किसी भी हतमी जो है बात तो तय नहीं हो सकी कि ताजिर किस तरह से इस टैक्स नेट में शामिल होंगे। तो आसिम, जो ताजरों का एक मौक़िफ़ ये भी है कि 60,000 रुपये अगर आपने हर दुकान पे टैक्स लेना है, और कई दुकानें ऐसी हैं या कई अगर हम मार्केट से देखते हैं कि टायर वाला जो है जो पंक्चर लगा रहा है शायद वो भी उतने ही 60,000 रुपये वो कैसे देगा? उसमें कोई ब्रैकेट बनाई गई है कि सोनार जो है वो भी उतने ही पैसे देगा या हर एक का डिफरेंट होगा? उस लिहाज से कोई कैटेगराइज किया गया है इसको, उस हवाले से कोई बात हुई है? जी बिल्कुल असद, इस हवाले से कैटेगराइज किया जा चुका है कि जो छोटे ताजर हैं उनकी अलग कैटेगरी है, उनके ऊपर 1,000 रुपए जो है वो मिनिमम उनको जो है वो टैक्स देने का पाबंद किया गया है, जबकि जो बड़े ताजर हैं उनके ऊपर ये 60,000 की जो स्लैब है ये उनके लिए मुकर्रर की गई है। ये बात दुरुस्त नहीं है कि वहां पर तमाम लोगों को 60,000 माहाना या सालाना जो भी है उनको वो देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुख्तलिफ कैटेगराइज किया गया है कि जो छोटे ताजर हैं, जो छोटे करियाना की दुकान रखने वाले हैं, उनको 1,000 रुपए माहाना जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जो ताजर है उनका इस हवाले से क्लेम ये है, उनका ये कहना है कि हम वो वहां पर कमर्शियल बिल्स की सूरत में बिजली के जो बिल्स हैं उसमें वो भारी टैक्सेस पहले ही अदा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है और जो वहां पर जो भी चीज उनकी दुकान में आती है उसके ऊपर एडवांस टैक्सेस और मुख्तलिफ जो टैक्सेस है वो वहां पर उससे पहले ही वसूल कर लिए जाते हैं। तो इस सूरत में उनको 1,000 रुपया माहाना अगर उनके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है तो इससे उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, लिहाजा वो किसी भी सूरत इस टैक्स नेट में आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हुकूमत इस हवाले से पुरज़्म है कि लाजमी तौर पर तमाम दुकानदारों को, तकरीबन 32 लाख दुकानदारों को वो टैक्स नेट में लाना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ख़ास तौर पर ये बता रहे थे कि हुकूमत जो है इस बार पुरअज़्म है इन इस्लाहात के लिए। कराची से मोहम्मद साकिब ने भी मुल्क के ताजरों की तरफ से टैक्स नेट में लाने के खिलाफ एहतजाज पर जानने की कोशिश की कि मईशत की बदहाली को मद्देनजर रखते हुए कितना मुमकिन है कि इस बार भी हुकूमत टैक्स लगाने के मुतालबे से पीछे हट जाए। बुध को पाकिस्तान भर में ताजिरों की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल की गई और इस हड़ताल के दौरान तमाम ही मार्केट्स, कारोबारी मराकज़, दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद दिखाई दिए।
ताजिरों की इस हड़ताल का मकसद ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, जिसके जरिए उन्हें टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें रजिस्टर्ड किया जा रहा है। लेकिन ताजिरों का कहना है कि इस स्कीम के तहत उन्हें माहाना हजारों रुपए और सालाना लाखों रुपए के नोटिस भेजे जा रहे हैं और इस नोटिस भेजने से उन्हें कारोबार करने में शदीद दिक्कत का सामना है। वो ऐसी सूरत हाल में कारोबार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो ताजिरों के जायज़ मुतालबात मानने को तो तैयार है, लेकिन इस वक्त इस सूरत हाल में जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसको किसी सूरत भी रोल बैक नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो फॉर्म है उसको आसान बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जो ताजिर, जो दुकानदार जिनकी जो सालाना टर्नओवर है वो बहुत कम है, उनको भी रियायत दी जा सकती है। लेकिन इस स्कीम को ख़त्म नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्कीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और सारा बोझ टैक्स कलेक्शन का सैलरीड क्लास पर नहीं डाला जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि इस हवाले से जो भी खदशात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। ताहम ताजिरों का ये कहना है कि इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए या फिर 3 महीने के लिए इस स्कीम को मुअत्तल करके स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात किए जाएँ और एक नया लाएअमल तय किया जाए। अब देखना यह है कि ताजिरों और हुकूमत के दरमियान ये जो कशमकश है इसका नतीजा क्या निकलता है। मुआशी उमूर के माहिर और साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तौला इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि हुकूमती रिफॉर्म्स में मसला है क्या। FPR की तरफ से टैक्स वसूल करने के तरीके पर ताजिरों को एतराज़ है या मुआशी हालात इतने बुरे हैं कि ताजिर टैक्स दे ही नहीं सकते। तो साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुल्क में गुज़िश्ता साल के टैक्सेस में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया। ताजिरों से टैक्स लेने का तरीका ठीक नहीं है या ताजिर टैक्स देना ही नहीं चाहते? ये आपको पता है कि आपने इंट्रोड्यूस कराया रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन कमीशन को क्लियर किया था और उस वक्त ये 25 सालों से मामला चल रहा है जो ये दुकानदार टैक्स देखिए ये जितना फैला हुआ सबका और इनके इतने मसाइल हैं कि उनसे स्टेट अवे टैक्स लेना इतना आसान काम नहीं था। लास्ट के राउंड में एक एक्सरसाइज की कि इनके साथ जिनकी तमाम स्टेट होल्डर जो जितने भी ताजे लीडर थे सबको लाख मैंने हुई उनसे लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा उनके मसाइल की। इनके मसाइल ये हैं कि इनके पास 2 किस्म के दुकानदार हैं। एक वो है जो तजारत करते हैं बुक और एक है सर्विसेज लाइन। तो सर्विसेज वाले जो है उनको अभी मैं फॉर टाइम में साइड कर रखते हैं और वो दुकानदार जो गुड्स में ट्रेड करते हैं जो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं या इम्पोर्टर से खरीदते हैं या जो इम्पोर्ट करके खुद बेचते हैं या खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके खुद बेचते हैं। ये क्या ब्लॉक क्लासिफिकेशन है। हमने यहाँ जो ये बात की थी कि अगर फर्क करें आप हमसे एग्री कर लें क्योंकि ठीक है हम आपको ये मराठी दे देते हैं कि आपके जो छोटे दुकानदार हैं जिनका टर्नओवर 3 करोड़ तक देते हैं उनको हम 1% टैक्स लेंगे अपनी टर्नओवर का। यहाँ से वो बाई करेंगे या इम्पोर्टर से या मैन्युफैक्चर से वो पूरे फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा। और जो 3 करोड़ से ऊपर वाले जो दुकानदार या जो ताजिर हैं उनको हमें ये कहा कि आप एक काम कर लें, हम आपके लिए कह देते हैं कि आप 1% कटवा लें और ये आपका मिनिमम टैक्स होगा और उससे वो एग्री हो गया। छोटा सा स्मॉल सर्विस का फॉर्म जो इनका एग्री पहले किया था हमने किया था। मेरे पास कोई एग्रीआर की टीम मौजूद थी। ये एग्री होने के बाद मैं लिख के दे के आ गया था तो किसी साहब को बल्कि मुझे नहीं पता कि मुझे इनकॉर्पोरेट नहीं मिली। अगर वो उस वक्त हम इनकॉर्पोरेट करते थे तो मेरे ख्याल से आज इतनी मेरी कोई मसला नहीं होता। तो अब लगता है आपको कि इनकॉर्पोरेट हो पाएगा? अब इस बार हुकूमत कामयाब हो सकेगी? कन्विंसिंग लग रही है, अपेरेंटली काफी पुरज़्म लग रही है हुकूमत। देखिए ये रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए लेकिन पहले के पास बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है तो लड़कियों का कंसिडर में एकदम क्लीन आसानी है। ये मतलब कोई ऑफिस नहीं था मैंने कहा कि आप जो रिटर्न आप देंगे वही रिटर्न का एक्सेस का बस जब बात आई है आप जो हमारे ताजे जो स्कीम जो शुरू कर दी ये काम खाली है कीमत की कितने बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं और ये आप जिस तरीके से आप कुछ टैक्स के तौर पर लेके आ सकते हैं। लेकिन इस टैक्स का जो निजाम था ये भी हमने पहले जो प्रपोज किया था 2016 की टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में वाकई देश के एक शेड्यूल बना था इनकम टैक्स काउंसिल में रेलिवेंट शेड्यूल नहीं था।
तो उन हिसाब से ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब ये नहीं चला, उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी और तमाम स्टेक होल्डर इससे मान लिए थे। मैं आज भी ये कहता हूँ हुकूमत को थोड़ा सा ये तो जरूरी था हमारे लिए कि तीस से पहुंच जाके इसका बैकवर्ड लेने थे, और अगर हमने ये एक स्टेप फॉरवर्ड किया और 30 स्टेप बैकवर्ड नहीं करना चाहिए, हमें उनको साथ दिखाई करने की। और मैं आपका हिस्ट्री बताया था, इससे पहले एक अटेम्प्ट हमने की थी IMF से जाके नेशनल अप्रूव करा के आया था ये एमनिस्टी स्कीम को पा के, ये 2015 दिसंबर की बात है, और इसमें IMF का कौन सा बकरी का उन सब गए थे और हमने अप्रूव कराई थी। उस वक्त भी कुछ थोड़ी सी हमारे SBI के दोस्तों ने लचक नहीं दिखाई, और इन स्कीम के बनने से कुछ चीजें ऐसी थी जो जरूरी थी जो गवर्नमेंट का इनकॉर्पोरेट कर दें, और जो हमने पूरे मुल्क में जलते किए, उनको बहुत किया, उनको कोशिश की कि आ जाए हमारे साथ, मगर कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पर उनके ताकुदार थे और इसकी वजह से वो स्कीम बड़ी तरीके से नाकाम थी। एक चीज में मैं चाहूंगा आप उसको इनकॉर्पोरेट करते चलें अपनी डिस्कशन में। FBR और ताजरों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इस वक्त, जो जिस तरह से FBR को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताजर, क्या मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो है टैक्स जमा करने की, उसके मसाइल हैं कुछ, या जेन्युइनली जो इनके ताजरों के कंसर्न्स हैं उसमें जान है कोई? अच्छा जनाब, दो चीजें सॉरी टू से, बिकॉज ये आपको तो पता है कि कोई तब्दील नहीं है, ना ताजर है ना हुकूमती मशीनरी है। देखिए सेवा किया, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बलदेवी साहब ने भी प्रोग्राम में कह दिया कि ये अब तो कॉम्पिटिशन चल रहा है कि करप्ट कंसल्टेंट जो है ये एक रेट कोट कर रहा था और टैक्स ऑफिसर एक रेट कोट कर रहा था, रिफंड दे। हमने बहुत कोशिश की कि उसको आसान किया जाए, बट हुकूमत एक पॉलिसी पता नहीं क्या है कि वो पॉलिसी के तहत उनके रिफंड देते जाते हैं, अपने करप्शन गलत होता है, ऑडिट के अंदर अलग करप्शन है। तो ये एक जवाब मिल जाता है ताजरों को या टैक्स पेयर्स को, यार हमारी मशीनरी इतनी करप्ट है कि हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जाहिर बात है, देने के लिए 100 तरीके ना देने का कोई बहाना है, तो वो एक बहाना ये है कि करप्शन और मीडिया का हमारा टैक्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को इशफाक साहब अगर हम कंपेयर करना चाहें रीजनल ममालिक से, तो टैक्स नेट बढ़ाने में जो मसाइल पाकिस्तान के हैं, क्या खित्ते के बाकी ममालिक में भी, उनमें भी टैक्स तो लगे होंगे, क्या वहां भी इसी तरह की रेजिस्टेंस रही? क्या कोई ऐसा मॉडल है रीजन में या दुनिया में जिसको पाकिस्तान फॉलो कर सकता है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, रिफॉर्म एनफोर्समेंट की रिपोर्ट है हमारी, उसमें हर डायनामिक जैसे जब भी रिफॉर्म होते हैं उसमें 3-4 वेक्टर्स पे हम काम करते हैं। नंबर 1 हम ये करते हैं कि नए रेवेन्यू कहाँ से आएंगे कि क्रिएट हॉरिजॉन्टल, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ी बबाल में दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ का वर्टिकल जो है टेक्स लगा के, तो अपने इदारे का जलादा ना हो। दूसरा होता है कि आप लॉकिंग द टैक्स बेस कैसे करें, तो एक फैक्टर हुआ आपका, एक साइड होती है आपकी कि बिल एलिजिबिलिटी लेते हैं, दूसरी साइड होती है कि ब्रॉडिंग द टैक्स बेस कैसे करें। अशरफ साहब, आपका कनेक्शन थोड़ा सा जो है इस वक्त जो है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का शिकार है। हम अगले किसी प्रोग्राम में आपसे इस बहस पे बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे, और देखेंगे कि हम और मसाइल पाकिस्तान के जो टैक्स के हवाले से हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में अक्सर लोग अमूमन कहते हैं कि हुकूमतें मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे टैक्स वसूल करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अवाम टैक्स देते नहीं है। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स पर मज़ीद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से माहिर मुआशियात डॉक्टर तैयब सत्तर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैयब, बहुत शुक्रिया। जिन ममालिक में लोगों को यकीन होता है कि उनका पैसा मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल होगा, वहाँ अवाम टैक्स देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, ऐसा एक यकीन है। पाकिस्तान में अवाम को एतमाद क्यों नहीं है कि उनकी रकूम मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होंगी? जी बहुत शुक्रिया असद। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि बहुत सारे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनमें ये मसाइल हैं जहाँ पे करप्शन और इस तरह के इशू ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोगों का ये ख्याल होता है कि उनका जो पैसा दिया जा रहा है और द गवर्नमेंट या जो स्टेट को जो वो पैसा दे रहे हैं उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे ये इशू होता है, जहाँ पे अगेन एज आई सेड स्टेट और जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो
जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है वो कमजोर होता है। तो द प्रॉब्लम इज कि लोगों को ये यकीन नहीं होता कि जो पैसा वो हुकूमत को दे रहे हैं वो उस तरीके से इस्तेमाल होगा जिससे उनकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको वो जो ट्रस्ट गैप है, वो जो डेफिसिट है, उसको किस तरह जो है आपने ब्रिज करना होता है। और इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो जाहिर है हुकूमत वक्त का भी होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मतलब हिस्टोरिकली कंटिजेंट एक जो है वो चीज होती है। इसको 1 साल 2 साल में नहीं सॉल्व किया जा सकता। इट रिक्वायर्स स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस। तो टैक्स के निज़ाम का एक पहलू जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि रियासतें टैक्स देने वालों की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ खदमात सहूलतें फराहम करती हैं, पाकिस्तान में किस हद तक ये निज़ाम है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया या हुकूमत वक्त जो पिछली गुजरी है उन्होंने कुछ नहीं किया। मसलन जो है अगर आप देखिए तो अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, अस्पतालों में दवाइयों का जो है वो काम है, एजुकेशन है, लेकिन उसमें जो हमारी जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह हमारी शरह तनासुब ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, उस तरह जो है वो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई। दूसरा इसका पहलू जो आजकल है वो ये है सर कि मसलन बिजली के बिल, अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, बिजली के बिल जो है, अगर आप बिजली का बिल एवरेज उठा के देखिए सर साहब, तो अगर 10,000 रुपया जो है वो बिल आ रहा है, उसमें से 5,000 जो है वो बिजली की कीमत है और 5,000 रुपया उसमें मुख्तलिफ मद में हुकूमत टैक्स ले रही है। तो उसमें जो है लोगों की परेशानी ये है कि जी हम इनडायरेक्ट जो चैनल्स हैं उसके थ्रू इतना ज्यादा टैक्सेशन जो है का शिकार है, तो हम क्यों जो है वो और ज्यादा टैक्सेस पे करें। इसी लेकिन मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो गैर दस्तावेजी हिस्सा है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो भी तो एक चैलेंज रहता है हुकूमत के लिए टैक्स नेट बढ़ाने में। फिर तो कितना बड़ा मसला है ये पाकिस्तान के लिए? सर, अगर आप पाकिस्तान का मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट सजेस्ट के ऑलमोस्ट 100% जितना हमारी जो है फॉर्मल इकोनॉमी का साइज है, उतना ही तकरीबन इनफॉर्मल या ग्रे इकोनॉमी का साइज है। तो वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह इतना ज्यादा जो पैसा है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसको किस तरह जो है वो टैक्स नेट में लेके आया जाए। दूसरा मसला सर जो ग्रे इकोनॉमी का है, एक जमाने में इसको स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता था कि पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान जैसे ममालिक अगर कोई इकोनॉमिक जो है वो दुनिया में कोई मसला आया, मसलन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको वेदर करने में या उसके साथ डील करने में इसलिए बेहतर रहते हैं क्योंकि देयर इज अ लार्ज ग्रे इकोनॉमी और वो अपने आप को सस्टेन कर लेती है। लेकिन उस ग्रे इकोनॉमी के बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो असरात भी है। टैक्स इज वन ऑफ देम। दूसरा मसला ये है कि जो ग्रे इकोनॉमी में फर्म्स होती हैं, दे कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। तीसरा मसला ये है कि प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर लो, सो देयरफॉर यू नॉट ओनली लूजिंग टैक्स रेवेन्यू, बल्कि आप प्रोडक्टिविटी और जो जिद्दत एक इकोनॉमी में होनी चाहिए उसको भी लूज कर रहे हैं। सो उसमें भी रेजिस्टेंस आती है। आखिरी 40 सेकंड है तैयब, सिर्फ एक क्विक चीज जानना चाहूंगा। तनख्वाहदार तबके का टैक्स अगर हम देखते हैं ओवरऑल पाए में तो शेयर काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। कैसे शामिल किया जाए उनको टैक्स नेट में कि वो भी इनकम टैक्स दें? देखिए, ये तो असद साहब बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हुकूमत स्टैंड ले, क्योंकि हमने पहले भी देखा है खासतौर पे ताजरों के साथ। इससे पहले जो है शबर जैदी साहब जब FPR में थे तब भी कोशिश हुई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब थे तब भी कोशिश हुई थी। देखिए, सिर्फ तनख्वाहदार तबके को जो है वो बार बार टैक्स करने से आपको जो है वो परेशानी ही रहेगी। बाकी सेक्टर्स को भी जो है वो स्टेप अप करने की जरूरत है अगर इस मसले से जो है वो बाहर आना चाहते हैं या इस मसले से हम बाहर निकलना चाहते हैं एज अ कंट्री। सो अगेन दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट, उसके ऊपर गुफ्तगू करना मुख्तलिफ तबकों के साथ इंक्लूडिंग इंक्लूड करना जो है वो जरूरी है बाकी तबकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब सफ्दर, आप हमारे साथ थे। इसी पर खत्म करते हैं नाज़रीन आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।